Hi, this is Tapsi Pannu, and you're watching me on Bollywood Nazar. Hi, this is Ali Fazal, and you're watching Bollywood Nazar. हाय दिस इज चित्रांगदा और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड नजर। भाई किसी का गिर गया बाद में गया ना चलो आराम से यूट्यूब पर आ वीडियो चल आगे पीछे ना मैं बोलो क्या बन गया क्या पीछे ना ए रोशन थोड़ा पीछे लेके खड़ा हो जा हां यहाँ से चलो अरे पीछे आ जाओ ना सब लोग किसका थोड़ा सा पीछे प्लीज अरे पीछे जगह ही नहीं है जगह नहीं है सेंटर में सर सेंटर ये लाइट लगाओ ना कोई बैटरी मेरा है लेकिन लगाएगा कौन चला कैसा लग अरे भाई कौन है भाई ये लाइट अच्छा सर दिस है सर दिस सर यहाँ से जी आप प्लीज थोड़ा क्लोज हिट है सीरियल लाइट है हाँ देख लाइट ये पहले कर दिया होता अरे क्या गेट में से लाइट अरे भाई पीछे रहो ना यार एक मिनट वेट अरे इनका कैमरा तो देखो अरे देख ना ये भाई पीछे में थोड़ा ओके थैंक यू मैम आ जाइए मैम मैम आते आपकी बारी ओके थैंक यू चल
Ranja. The heartthrob of television, Avinash Rekhi, plays Ranja, while the gorgeous Tanisha Mehta plays Heer. तो थोड़ा सा बताएंगे हमें, if you don't mind, please share with our media friends कि what is it that excited you about the role? आपको क्या आपके किरदार के बारे में पसंद आया जिस वजह से आप इस शो का हिस्सा है? Well, first of all, good morning everybody and thank you so much for coming. Secondly, obviously, the first part is that the show is produced by Dome Entertainment, Mazhar sir, Mohammed sir. That was the first thing which gave me that pleasure to working with them once again, because it's like a family to me. And secondly, the story of the show is so beautiful, so intriguing that it just hooked on to my mind, and then I said yes to it. Pretty much, मेरा भी reason काफ़ी similar है. So the production is very lovely and very friendly, and I feel blessed कि मतलब मैं Zee TV के साथ फिर से काम कर रही हूँ. So that excited me a lot because they are a very friendly team to be working with. And of course my character Heer, बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही simple लड़की है. She is an aspiring lawyer. तो उसका character काफ़ी fun और entertaining भी है. एंड उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखती है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले विद क्योंकि उसके काफ़ी सारे शेड्स हैं. रांझा के बारे में थोड़ा सा और? Well, Ranja is like a pillar of strength, a strong, mighty, resilient, and a poised, respectful, and a childhood friend of Heer. And how he, ensures the safety and well-being of Heer in all her life. And very indebted to Heer's family because, he's an orphan raised in a Gurdwara. And how Heer's family has fully supported him, given him love, given him family, which he considers his. And how through the testing times of Heer's journey, where she draws upon her inner strength, where she confronts all injustice, and Ranja makes sure that, she survives and, fights with all the obstacles of her life. So that's what Ranja is. Thank you so much. I'd like to call the producers back up on stage. We're going to throw the house open for Q&A. The media, please feel free to raise your hands. And please tell us your name and the publication or media house you're from. And we will pass the mic to you. Yeah? Can we please have some chairs on the stage? Hi guys, Riddhi here from Telechaska. So first question is that Avinesh आपने पहले भी इस तरह का कैरेक्टर किया है. So what do you have to say about this character? Like look के अलावा क्या difference लगता है आपको? पहले तो मैंने इस तरह का कैरेक्टर नहीं किया. ये मैं पहली बार ऐसा कैरेक्टर कर रहा हूँ. Though where the look is concerned, obviously there are so many similarities in my previous shows also, in my other shows where I was not wearing a turban. So isme, just because I'm wearing a turban doesn't make it very similar to my other characters. Every time when you wear a turban, you don't get stereotyped. So that's what I wanted to prove. And secondly, इसमें बहुत कुछ different है. ये एक बहुत ही देसी young मुंडा है और पंजाब का है और पंजाब की मिट्टी से जुड़ा हुआ है. और एक सपोर्ट सिस्टम है एक लड़की की ज़िंदगी में जो कि लड़की बहुत ही अपने एक लड़की जिसकी लाइफ में इतनी मुसीबतें आ रही हैं वो उससे लड़ रही है एंड ही इज़ हर चाइल्डहुड फ्रेंड. उनका एक बॉन्ड है अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप जो कि वो शेयर करते हैं और उसमें कैसे वो उस लड़की के साथ उसको हेल्प करता है और कैसे उसकी जर्नी से वो प्रोसीड होती है. सो दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. सो देयर इज़ नथिंग सिमिलर व्हिच आई हैव डन बिफोर लाइक दिस. हाय, किरण फ्रॉम दैनिक भास्कर. तनिषा हियर. तनिषा, ये सवाल मेरा आपसे है कि जब हम पंजाब रिलेटेड कोई शोज़ देखते हैं तो यूजुअली ऑब्वियसली पंजाब का बैकग्राउंड तो हम देखते हैं, एक लव स्टोरी देखते हैं, बट यहाँ जो हमने प्रोमो देखा है एक इंटेंस ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है.
तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का इस कॉन्सेप्ट के साथ में, और एज एन ऑडियंस हमें क्या पुराने शो से कुछ अलग देखने मिल सकता है आपके शो की तरह? सो यूजली टेलीविजन में लव स्टोरी इज़ लाइक द मेन थिंग, और आप सारे शोज़ देखो कि लव स्टोरी को हाईलाइट किया जाता है, बट इसमें आई थिंक मोर देन लव स्टोरी इट्स इम्पॉर्टेंट टू शो अ स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, एंड फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लव. So I think this is what excited me for this role, क्योंकि it's not that typical love story, it's a story of friendship and it's a story of support. He's my pillar of strength. तो ये सब I think audience देखेगी तो it will also inspire them. Yeah, it's not like the boy meets girl kind of romance and you know initially only and then the journey proceeds and how they fall in love. But this is very different from other shows. हेलो, मेरा सवाल प्रोड्यूसर जी से है. आपको क्या स्पेशल लगा इस शो में, कुछ बता सकते हैं? इस शो में जो स्टोरी है वो बहुत हटके है. इट्स वेरी डिफरेंट, समथिंग विच हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड बिफोर. जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा आप देखोगे. इट्स अबाउट द स्ट्रगल ऑफ दिस गर्ल एंड रांझा स्टैंडिंग बिहाइंड हर एज अ पिलर एंड हाउ द जर्नी कंटिन्यूज वेयर शी गोज थ्रू मेनी ऑब्स्टिकल्स ऑफ लाइफ एंड हाउ शी स्टैंड्स, you know, her stand and fights against all these obstacles. She's studying law and there's a lot of twists and turns and you will see these coming through. So we have credited to our writers Ranjeev and Neetu who have this amazing thought of the story, and we loved it, and that's how I think this story is going forward now. And I'm very happy with the promo, very happy with the first episode. And we've seen the promo now and it's looking very, very promising. So let's hope that you all audiences love the show as we are excited to produce it. Hello, here Shilpa here from Mayapuri magazine. अवनीश, आपसे मेरा सवाल है कि प्रोमो काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेलीविज़न पर अभी तक काफ़ी एक अलग कहानी लग रही है, काफ़ी एक्साइटिंग है प्रोमो. एंड आपसे जानना चाहेंगे कि शो की स्पेशल बात आपको क्या लगती है अकॉर्डिंग टू यू? Story, the content of the show is very special. You know, it's a very different story, as she's already mentioned. कि भाई ये कोई normal love story नहीं है. It's a very different story, which you know promises entertainment and especially promises the unbreakable bond of friendship. You know, which has never been shown before. तो इसमें बहुत ही कुछ different है. It's filled with drama, obviously, a lot of drama, a lot of twists and turns, जो कि बहुत ही exciting है. In each and every episode, in each and every frame, you will get to see कि भाई कितना ड्रामा और कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ है. सो आई थिंक फर्स्ट इम्प्रेशन तो कुछ नहीं होता है सच. इट्स द होल स्टोरी, इट्स द होल कंटेंट विच लीड्स टू द एक्साइटमेंट. तो वो सारा ही एक यू नो इट्स लाइक अ क्लब थिंग एंड वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट किया एंड दैट्स हाउ इट इज़. थैंक यू. हेलो अविनेश, शीतल हियर फ्रॉम E24 चैनल. सो आपका पंजाबी लुक है इस सीरियल में. इससे पहले छोटी सरदारनी में भी आपका पंजाबी लुक था जो काफ़ी हिट था. सो आपको क्या लगता है कि पगड़ी पहनना वो आपके लिए काफ़ी लकी होगा, क्योंकि ये शो भी एक कुड़ी पंजाब दी काफ़ी हिट होने वाला है? थैंक यू सो मच. आपके मुंह में घी शक्कर, वो हिट ही हो, पहली बात तो ये है. और दूसरी, पगड़ी पहनना मेरे लिए एक ब्लेसिंग है. आई हैव ऑलवेज लाइक दिस लुक, और स्पेशली जब ये वाला शो भी मुझे ऑफर हुआ था तो उस टाइम पे भी जैसे ही मुझे पता लगा कि इसमें मुझे टर्बन पहननी है तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं टर्बन में अच्छा लगता हूँ और आई फील दैट कॉन्फिडेंस, और एक बाबा जी की ब्लेसिंग होती है ऑब्वियसली. तो and also secondly, because I hail from Punjab, I'm a Punjabi myself, so the character and language comes easily to me, and to portray also and to perform in front of the camera, it gets very, very easier. So I like wearing a turban, and like if I've gotten an opportunity once again to wear a turban, I would definitely do it. So guys, I think सवाल जवाब का सिलसिला चालू रहेगा, but we should do it now in a different format. Let's call the friends from the back, all the electronic media to come forth for a bite. Also photographers, please step forward for a photo op. We can do the photo op followed by this group bite and then break for one-on-one interactions. And please join us for lunch. There's lunch served, and there's one more announcement. Sure.
For the sake of our artists who are waiting outside and missed the AV, we're going to play the AV one more time, just before the photo op. Let's watch the AV of the show once again, and then we'll proceed with the photo op. क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले तो इसका थोड़ा आप अगर ब्रीफ करें तो ये किस बेस पे है? बेसिकली एक लड़की की कहानी है, एक लड़की की जर्नी है, हीर, जो कि तनिषा प्ले कर रही है, और कैसे शी इज़ एन एस्पायरिंग लॉयर ऑल्सो, और कैसे उसकी जर्नी शुरू होती है, शी इज़ लव्ड बाय एवरीवन, और कैसे एक ट्विस्ट आता है उनकी लाइफ में जहाँ की उनकी शादी हो जाती है अटवाल फैमिली में, और उनके साथ उनके रक्षा के लिए हमेशा एक बंदा खड़ा है जिसका नाम है रांझा। रांझा एक अनाथ है जो कि गुरुद्वारे में पैदा हुआ है, गुरुद्वारे में पला बड़ा है, और उसकी हीर की फैमिली ने उसके ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं, उसे एक घर दिया, एक परिवार दिया, एक अच्छी देख रेख दी, तो मतलब ही इज़ फुली डिवोटेड टू हीर्स फैमिली। तो फिर ऐसे ही उनकी जर्नी प्रोसीड होती है, और कैसे हीर की लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी तकलीफ़ें आती हैं, बट रांझा मेक श्योर्स कि वो उनके लिए हमेशा उसके साथ रहे, और कैसे हीर अपनी जब लड़ाइयों से लड़े जो कि वो खुद लड़ती हैं, और कैसे उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा वहाँ पर रहे। तो ये कुछ कहानी है एक कुड़ी पंजाब की। अविनेश आपसे जानना चाहेंगे, छोटी सरदार जी जो था वो भी यही ऐसे ही था, और अभी नहीं ऐसा कहाँ था, लोग कोट पैंट पहनता था मैं उसमें। मगर जो सिख का जो ये होती है बल्कि एग्जैक्टली it suits you, but the thing is, what's the reason to choose the character Sikh? Exactly the same reason. It suits me a lot. It suits me a lot. और अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑफ़र आया है जिसमें कि एक सरदार का किरदार निभाना है, तो why not?
क्यों नहीं मैं कर सकता? जब मुझे एक बार उस बात की अप्रिसिएशन मिली है, सो आई शुड dwell into it again, one more time, and again and again. तनिषा, आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो रहा है पंजाब का कल्चर आप प्रेजेंट कर रहे हो? तो फर्स्टली चैलेंजिंग तो है, काफ़ी चैलेंजिंग है, बिकॉज आई एम नॉट अ पंजाबी माई सेल्फ, लेकिन हमारे But she's doing an amazing job. थैंक यू। इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है पंजाबी बोलने में, पंजाबी डायलेक्ट पकड़ने में, एंड ऑल्सो हमारे डायरेक्टर भी पंजाबी है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ हेल्प ऑन सेट। एंड ऑल्सो अगर आपके अंदर की इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर हो ही जाता है। और इनकी इतनी इच्छा स्ट्रॉन्ग है कि ये मतलब मेक श्योर करती है शी इज़ ऑलवेज रिहर्सिंग लाइन्स। मतलब जैसे ही कैमरा कट होता है, मतलब शी स्टार्ट्स रिहर्सिंग लाइन्स। मतलब इतना तो डेडिकेशन मैंने देखा नहीं किसी में, इतना तो मैं भी नहीं था। थैंक यू। जिस तरीके से हमने टीजर देखा है, 30 सेकंड में जो आप भाग के आती है, फिर आप अपना प्रोटेक्शन करती है, कड़ा इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमने जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि कड़ा एक मतलब प्रोटेक्शन का प्रतीक है, खालसा का प्रतीक है, खालसा का प्रतीक है। और जिस तरीके से आप वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि अपना सेफ्टी, वो भी एक यही मैसेज देते हैं कि जब सब हथियार चले जाए तो कड़ा एक ऐसी चीज़ है जो हमें प्रोटेक्ट करे। आप भी वही करिए, तो कैसा लग रहा है? इसलिए हमें उस तरीके का मैसेज जो आप रियलिटी शो आप करिए, बट हमें एक मैसेज जो सारी फैमिलीज शो को देना चाहिए, तो कैसा फील? यू वुड नो मोर अबाउट द कड़ा। सो बेसिकली जैसा आपने कहा कि एकदम सही कहा कि मतलब इट इज़ टू प्रोटेक्ट, बट साइमल्टेनियसली इट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग बाय द गॉड। तो मतलब वो ब्लेसिंग के साथ, मतलब कि बाबा जी मेरे साथ हैं वाला सीन है कि बाबा जी मेरे साथ हैं, तो कोई भी कितने भी सारे, जैसे कि उसमें एक डायलॉग है कि चिड़िया नाल बाज लड़ावा, मतलब चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ। मतलब चिड़ियाँ जो होती हैं, बर्ड्स आर लाइक दे आर मोर वल्नरेबल। जहाँ की बाज होता है, जो वल्चर होता है, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। चिड़ियों से मतलब बाज लड़ाऊँ कि बाज भी अगर मेरे सामने आ जाए तो बीइंग अ बर्ड ऑल्सो आई कैन बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो पावरफुल मैसेज देने की कोशिश की है कि मतलब जितने भी जनता मेरे सामने आ, जितने भी लोग आ जाए, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ उनके लिए। एंड ऑनेस्टली परफॉर्म करते वक्त आई फेल्ट इट, मुझे फील हुआ जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे कड़ा पकड़ने का एंड ऑल दैट, यू एक्चुअली फील स्ट्रॉन्ग, बिकॉज द मैसेज इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाजी सत श्री अकाल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप में जो कैरेक्टर है खुद में एक अलग रुतबा है। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा, इस पूरे सीरीज़ के अंदर देखो, सीरियल के अंदर देखो, तो क्या एक ऐसा पॉइंट लगता है आपको कि हाँ ये मेरे कैरेक्टर को और भी एक अलग पावर देता है? ये मेरे कैरेक्टर को एक और अलग पावर देता है। यू नो व्हेन यू आर स्टैंडिंग विद समवन एज अ प्रोटेक्टर, तो इतनी मुसीबतें आ रही हैं और वो लड़की जो है वो उससे लड़ रही है, एंड यू आर लाइक अ प्रोटेक्टर, तो वो खुद में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मतलब आई एम देयर टू प्रोटेक्ट। एंड व्हेन यू आर अ प्रोटेक्टर ऑफ समवन ना, तो वो खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस आता है। तो आई थिंक दैट स्ट्राइक्ड मी अ लॉट कि भाई मतलब कि मैं अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ, किसी लाइफ में आई कैन मेक अ डिफरेंस, तो वाई मतलब दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट थिंग कि अगर आप थोड़ी सी भी आपको ये फीलिंग आ जाए कि आप किसी की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, एक इंस्पिरेशन बन रहे हो किसी के लिए, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट थिंग। तो आई थिंक दैट स्ट्राइक मी अ लॉट। एंड आई डोंट थिंक इट्स लाइक अदर शोज में ऐसा होता है कि आई डोंट थिंक इट्स लाइक अदर शोज, क्योंकि उधर ऐसा होता है कि द हीरो इज फाइटिंग फॉर द हीरोइन और द हीरो इज डूइंग एवरीथिंग फॉर द हीरोइन, बट ओवर हियर इट्स लाइक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो मेरे अंदर मतलब थोड़ा हेल्प करे, मुझे सपोर्ट करे कि तुम But she is जाके leading her way. आई एम लीडिंग माई वे थ्रू हिम। सर लास्टली क्या मैसेज देंगे फैंस को, ऑडियंस को? आपका शो ऑन एयर होने जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि आपने इतने साल, इतने टाइम तक मेरे हर प्रोजेक्ट को, हमारे हर प्रोजेक्ट को इतना प्यार दिया है, और ये भी हम एक नई कहानी आपके सामने लेकर आ रहे हैं 21 तारीख को 7 बजे ZTV पर। तो आप इसे भी उतना ही प्यार देना, उतना ही स्नेह देना, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much. Bye.